What's good, everybody? This is Veer Kosle. Welcome to the podcast of Design Daily. We have a creative guest, Shruti Jha, and she is also a YouTuber. She is having 1.2k subscribers. And guys, today we had a deep conversation about how to be a good architecture student and how to be a good architect. So this video will change you forever. So watch until the video. And guys, please hit the bell icon and enjoy the video. What's up, Shruti? Hi, I'm fine. How are you? I'm good. Thanks for being on my channel. It's my honor that you're on my channel. The second thing is that congrats for 1.2k subscribers on your channel. Thank you so much. I'm so glad that I'm on your channel. Thanks a lot. So today's podcast is not only the podcast. Today's podcast is going to be a chit chat and truth about architecture, because in this video, in this podcast, we are going to discuss about the truth about architecture. What is architecture, what is essential in architecture. So guys, अगर से आप ये वीडियो देख रहे हो ना स्टार्टिंग से एंड तक, तो लाइक आप लोग को आर्किटेक्चर क्या होता है मेनली आपको सब कुछ पता चल जाएगा. So let's get start. So Shruti, tell me something about your journey, like how you enter an architecture career. Why do you choose career as an architecture? So the answer to this question is actually quite big. I actually had no idea that I wanted to do architecture when I was in school, and I was so confused that basically what field should I go in. And basically when I was in school, I gave NIFT examination, and also I gave JEE entrance, I gave NATA, I gave all the examinations basically because I had no idea that what I wanted to do. And then I also got into NIFT, but then when I actually saw the courses in NIFT, they were actually very specialized courses, which actually you had to be very sure कि तुम्हें यही करना है, then only मुझे लगता है कि निफ्ट में जाना चाहिए, क्योंकि अगर बाद में आपको कभी अपना फील्ड चेंज करना हुआ तो आप नहीं कर पाओगे बिकॉज दे आर वेरी वेरी स्पेशलाइज्ड कोर्सेज. तो मुझे ऐसा कुछ नहीं करना था क्योंकि मुझे इतना नहीं पता था. So I took an year drop and then I visited many colleges, and I especially visited Amity University because I was from Amity, so I was actually familiar with Amity University, so I visited it and I saw all the courses. They were like they had almost all the courses. तो मैंने देखा कि किस course में actually में कैसे पढ़ाई होती है. And the architecture was one course which actually intrigued me a lot. और उसमें मैंने देखा कि किस तरह से building की designing होती है और किस तरह से हमारी creativity use होती है to help people out, and people will live in the building you will design. So I think कि बहुत बड़ी बात है कि हम किसी को shelter provide कर रहे हैं. तो इस तरह से मुझे आर्किटेक्चर कुछ इंटरेस्टिंग लगा और फिर फाइनली मैंने आर्किटेक्चर को चूज किया. Great man, like this is an inspiring story. Like you have took 1 year drop just because like भाई NIFT छोड़ के like you take an architecture as a career. और ये कहीं ना कहीं पता है मतलब बहुत अच्छी बात है. like अपने आप को अपने आप को एक साल देना, एक समय देना ताकि आप मतलब इनहेंस कर पाओ अपने आप को. like कई मतलब हाँ ये चीज़ मेरे में फिट है, मैं यहाँ पे फिट हो रहा हूँ, लाइक ठीक है अब लेना है आर्किटेक्चर. तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं लाइक कि भाई आर्किटेक्चर ऐसे लेते हैं कि मेरा जेई मेंस में नंबर नहीं लगा तो मेरा मेंस पेपर 2 तो बहुत ज़्यादा इजी था, बहुत ज़्यादा नाटा तो ऐसे क्लियर हो गया, कुछ था ही नहीं, एमसीक्यूज थे. सो मैंने आर्किटेक्चर लिया. बाद में आर्किटेक्चर में आने के बाद पता चलता है कि भाई वाट लग गई. तो कहीं ना कहीं जो भी ये वीडियो देख रहा है तो कहीं ना कहीं इससे वो बहुत कुछ सीखने मिलेगा कि नहीं एक साल ड्रॉप लेके या फिर खुद को थोड़ा समय देके हम लोग कैसे करियर ऑप्शन करेक्ट तरीके से चूज कर सकते हैं. तो ये वीडियो उसको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा ये पॉइंट. Yes, and basically you have to like stick with this career for the rest of your life, right? Obviously. तो अगर तुमने अपने आप को खुद एक्सप्लोर नहीं किया because of Indian education system, हम लोग अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाते. हम लोग हमेशा स्टडीज में उसके आसपास ही रह जाते हैं. बट यू हैव टू एक्सप्लोर योर सेल्फ बिकॉज आजकल दुनिया में इंजीनियरिंग और डॉक्टर के अलावा बहुत सारी फील्ड अवेलेबल हैं. सो यू एक्सप्लोर योर सेल्फ कि इन विच थिंग यू हैव इंटरेस्ट, एंड इफ यू विल चूज अ करियर in which you are passionate about, then no one can stop you from being successful. Obviously. So this is some tip and trick about from Shruti. So guys ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, बहुत ज़्यादा. Second question to you is that what's your views about NATA and JEE paper 2? क्योंकि ये बहुत सारे लोग होते हैं कि पेपर तो दे देते हैं फिर लोगों को लगता है कि नहीं भाई मेरा नाटा मतलब आर्किटेक्चर में आके मेरा बहुत बड़ा नाटा से काटा है.
तो व्हाट्स योर व्यूज अबाउट ऑन नाटा एंड जे पेपर 2? Basically, the Indian education system till now it is based on road turning, as you all know. But now it's time कि हम लोग उस चीजों को change करें and हम लोग मतलब बच्चों को उस चीज पे assess करें जो literally assess करने वाली है. For example, for architecture, the skills, not even the skills, the architecture, the qualities you require is how creative you are, how good you can visualize things. मतलब अगर तुम्हें किसी ने रूम डिजाइन करने दिया है, so how can you visualize कि ये कलर होने के बाद कैसे लगेगा या किसी इसको थोड़ा चेंज करने के बाद कैसा लगेगा. Do you have that quality? तो I think in design qualities पे या फिर in creative चीजों पे लोग बच्चों को assess करना चाहिए rather than JEE paper is putting such high level maths which I don't even know कि इतना ज़्यादा maths कब से use होने लग गया architecture में. हमेशा basic level का ही maths use होता है. So literally they should change their pattern. And NATA and JEE में अगर तुम्हारे अच्छे number नहीं आए हैं, it doesn't even matter. Architecture is very different and architecture is a very wide field. So NATA and JEE doesn't matter. वो ऑब्वियसली तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई मेरा इंजीनियरिंग में नंबर नहीं लग रहा है तो मेरे नाटा और जेई पेपर में अच्छे परसेंटाइल आए, अच्छे मार्क्स आए क्योंकि वो इजी था. तो दे थिंक दैट कि नहीं आर्किटेक्चर भी इजी है, तो वो कॉलेज में आ जाते हैं और लाइक फिर बाद में वो बोलते हैं नहीं भाई नहीं हो रहा है. सो ये कारण होता है कि उनका पैशन ही नहीं होता है डिजाइनिंग का, उनका पैशन होता है कि वो विजुअलाइज करे, मतलब उनको चीज़ों से अट्रैक्शन हो. इसलिए फिर कहीं ना कहीं वो बच्चे पीछे रह जाते हैं. उनको समझ में आता है कि मैं खुद आर्किटेक्चरल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ तो मेरे को पता है क्या होता है. बट बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको आर्किटेक्चर के बारे में पता ही नहीं होता. सो गाइज अगर से आप लोग देख रहे हो अभी तक तो आपको ये वीडियो बहुत डिटेल में जाने वाली है जो आप लोग पूरा समझोगे कि भाई क्या होता है आर्किटेक्चर. सो इसी को मद्देनजर रखते हुए लोग प्रिफर करते हैं कॉलेजेस मार्किंग्स. सो व्हाट्स योर व्यूज अबाउट आर्किटेक्चर कॉलेजेस? इज इट नेसेसरी टू स्टडी इन अ बेस्ट कॉलेज? और ये जो बेस्ट कॉलेज और जो होता है रैंकिंग कॉलेज, इसके ऊपर तुम्हारे क्या व्यूज है? बेसिकली मैंने ये अपने वीडियोस में भी बोला है कि क्योंकि आर्किटेक्चर में कोई बुक्स नहीं होती, सो यू डोंट हैव टू मग एनीथिंग अप. रोड लर्निंग पे बेस नहीं होता है आर्किटेक्चर. एंड आर्किटेक्चर इज नॉट अ कोर्स जिसमें आपको टीचर आएगा और बताएगा कि ऐसे ऐसे करते हैं और आप कर लोगे. नहीं, like even if I give you an example of a room decoration or a room transformation, so everybody will do it differently, right? सबका एक aesthetic भी अलग होता है, right? कोई white colors करेगा, कोई dark colors करेगा, कोई bright colors करेगा, तो सबका अपना अपना अलग अलग design होता है, right? So nobody can even teach you how to design और nobody can even say कि ये डिजाइन गंदा है. हो सकता है टीचर को गंदा लग रहा हो पर किसी और को अच्छा लगे. So it's basically on yourself that how much are you exploring the buildings which are around you. So if you are in a college which is in a good location, तो वो बहुत अच्छी बात होती है. फैसिलिटीज भी कॉलेज में अच्छी होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एनआईटी के पीछे भाग रहे हो और बाकी फैसिलिटीज भी अच्छी नहीं है, टीचर्स भी नहीं आते, nobody cares if you are studying or not. So ऐसे नहीं होता आर्किटेक्चर. And usually even if you are like taking up an NIT, so you have to do your research. Don't just blindly go कि ये पहले नंबर पे आ रहा है तो मैं इसमें चला जाऊंगा. No, ऐसा नहीं होता. आर्किटेक्चर आपको खुद ही करना है सब कुछ. I hope you understand what I'm saying, because आर्किटेक्चर में आपको खुद ही एक्सप्लोर करना है. Yes, exploration is very necessary in architecture. But guys यहाँ पे ना एक पॉइंट ऐड होगा लाइक कि आर्किटेक्चर अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे एडमिशन बहुत सारे कॉलेजेस में कम हो रहे हैं, तो कॉलेज फर्स्ट ईयर लेने के बाद कॉलेज ही बंद हो रहा है. तो ऐसे कॉलेज में मत जाओ जो बंद होने के कगार पे. ऑब्वियसली ऐसे कॉलेज में एडमिशन लो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस बंद हुए तो उसके कारण मेरे भी फ्रेंड्स हैं जो थर्ड ईयर में सेकंड ईयर में एडमिशन लिया है उन्होंने भी, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, ये सब चीज़ों की बहुत प्रॉब्लम फेस करने लगा है. तो ऐसे कॉलेज में मत जाओ, थोड़े अच्छे ही कॉलेज में जाओ, क्योंकि ऑब्वियसली अच्छा बुरा होता नहीं है, बट उस कॉलेजेस में जाओ जो बंद नहीं होंगे फ्यूचर में, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको ईयर है वो रिपीट ना करना पड़े. रिसर्च करो कि कहाँ अच्छी फैकल्टीज आती है, क्योंकि बिल्कुल ही जो न्यू कॉलेज होता है ना वहाँ पे एक्सपीरियंस फैकल्टी नहीं होती है. तो तुम्हें दोनों चाहिए, सीनियर फैकल्टी भी चाहिए और यंग फैकल्टी भी चाहिए. सीनियर फैकल्टी तुम्हें एक्सपीरियंस सिखाएगा, ये सही चीजें बताएगा कि अभी तक क्या होता आ रहा है, और यंग फैकल्टी तुम्हें सॉफ्टवेयर सिखाएगा जो कि सीनियर फैकल्टी नहीं सिखा सकता. तो बेसिकली दोनों चीज होनी चाहिए, लोकेशन होनी चाहिए, फैकल्टी होनी चाहिए, फैसिलिटीज होनी चाहिए. तुम्हें विजिट करना पड़ेगा कॉलेजेस में कि कौन सा कॉलेज रियली में अच्छा है, और जो
आईआईटी वगैरह जो कहते हैं ना उस पर मत बिलीव करो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो अच्छा ही हो सकता है उसकी लोकेशन किसी गांव में जाके हो, तो गांव ऑब्वियसली, में तुम्हें कैसे मिलेगा एक्सपोजर, वहां पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स ही नहीं है। तो ऑब्वियसली। मैं ये कह रही हूँ कि अपनी एक्सप्लोरेशन करो, अपना विजिटिंग थोड़ा करो, विजिट करो और देखो कि क्या अच्छा है, डोंट जस्ट ब्लाइंडली बिलीव ऑन गूगल। और कहीं ना कहीं ये चीज़ ना मतलब मेरे को बहुत सही लगती है जो श्रुति ने बोला, लाइक अपना एक्सप्लोजर, अपना लोकेशन सबसे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप बड़ी बिल्डिंग्स, आप अच्छे कंस्ट्रक्शंस देखोगे नहीं, तब तक आप सीख नहीं सकते। और यही चीज़ें जो मतलब आपकी क्रिएटिविटी को इन्हांस करती है, इंक्रीज करती है। सो यही चीज़ है, लाइक जो आपको मतलब अच्छे कॉलेज और बुरे कॉलेज जो आप लोग के मीन्स है वो आपको क्लियर करती है। सो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि व्हाट्स योर एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट ईयर इन आर्किटेक्चर, क्या एक्सपीरियंस रहा है? बेसिकली तो फर्स्ट ईयर इन आर्किटेक्चर लोग सोचते हैं कि ओ माय गॉड आर्किटेक्चर ले लिया ना, आई एम गोना गेटिंग टू बी डिजाइन बिल्डिंग्स एंड अभी मैं डिजाइन करूंगा बिल्डिंग्स को। ऑब्वियसली। तो फर्स्ट ईयर में गाइस डिजाइन नहीं करनी होती बिल्डिंग्स एंड फर्स्ट ईयर इज फेयरली सिंपल, यू आर ओनली गोना लर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिजाइनिंग, not you don't have to do designing yourself, but you're gonna learn concepts of designing, right? तो ऑब्वियसली। उसमें बेसिकली तुम्हें लग सकता है कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या सिखा रहे हैं, तो गाइस नो ऐसा नहीं है, आगे आएगा अच्छा अच्छा पार्ट। फर्स्ट ईयर इज काइंड ऑफ कि तुम्हें बेसिकली ये सिखाएंगे कि प्रिंसिपल्स क्या होता है डिजाइन करने के, और वो हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तुम आगे डिजाइन करोगे ना बिल्डिंग, तो तुम्हें फर्स्ट ईयर का याद आएगा कि हाँ फर्स्ट ईयर में सीखा था। हाँ, So रिदम, something like रिदम, that. And रिदम, बैलेंस, ये सब कुछ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे मतलब चीज़ें होते हैं जो आपको सीखना पड़ता है फर्स्ट ईयर में। लाइक फर्स्ट ईयर इज़ अ बेसिक ईयर ऑफ आर्किटेक्चर, लाइक उसमें आप लोग ऐसी चीज़ें सीखोगे हाँ ना मतलब जो हाँ, आप। जैसे अगर तुम लोग नर्सरी में थे तो एबीसीडी सीखते हाँ थे हाँ हाँ, राइट, सेम। तो तुम्हें ऐसा लगता होगा यार एबीसीडी मतलब लिटरली अब तो याद भी नहीं है एबीसीडी, बट एबीसीडी की वजह से ही तुम अब सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हो या फिर इंग्लिश बोल सकते हो, राइट? तो सेम इज द फर्स्ट ईयर इन आर्किटेक्चर। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मतलब हर चीज़ बेसिक होती है। जैसे फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ग्राफिक्स, डिज़ाइन, मतलब कंस्ट्रक्शन, और लाइक प्रेजेंटेशन स्किल, वर्कशॉप, ये जो चीज़ें होती है ना, आपको मतलब कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे ऐसे बनती है, लाइक एक इकट्ठा बनती है, और वो आपके अंदर से बाहर से निकलता है कि नहीं, अब आपको डिज़ाइन में उतारना, लाइक आपको वो जितना भी नॉलेज है एक साथ ऐसे निचोड़ना है ग्लास में, उसको पी जाना है, और फिर उसको अपने डिज़ाइन या फिर अपने बिल्डिंग में उसको शो करना, लाइक द। तो फर्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लोग बोलते हैं कि नहीं भाई फर्स्ट ईयर तो निकल जाएगा, बट मैं बोलूँगा कि फर्स्ट ईयर में अगर से आप जाने वाले हो, सो हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लो, और अच्छी तरीके से पढ़ो, लाइक समझ के। मगअप मत करो, क्योंकि आर्किटेक्चर में भी मगअप होता है, रट्टा मारना होता है। सो रट्टा मत मारना बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। यस बेसिकली गाइस हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर वगैरह होगा फर्स्ट ईयर में। ऑब्वियसली, हाँ हाँ। तो उसकी भी अपनी इम्पोर्टेंस है कि पहले के जमाने में जो बिल्डिंग्स डिजाइन होती थी उसमें कोई टेक्नोलॉजी तब नहीं थी, बट स्टिल दे हैव मेड सच आइकॉनिक बिल्डिंग्स, राइट? तो अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो अब हम उससे सीख के ऐसा क्या बना सकते हैं जो कि बिल्कुल आइकॉनिक हो, तो इसलिए हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर पढ़ना जरूरी है। तो या सब चीजें की अपनी अपनी यू नो अच्छी वैल्यू। क्वालिटीज है सारे सब्जेक्ट्स की, हम्म। तो सब अच्छे से पढ़ना, यू गोना एंजॉय इट। ऑब्वियसली मतलब अपनी हर चीज़ की एक वैल्यू होती है। और ये चीज़ ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी को भी मतलब बढ़ाती है, अगर से आप खुद को इन्हेंस करते हो फर्स्ट ईयर में, और एक्सप्लोर करते हो अपना, सॉरी एक्सप्लोर करते हो अपने आप को। तो हाउ टू, मतलब मैं पूछूंगा कि हाउ टू डेवलप और हाउ टू इन्हांस आर क्रिएटिविटी, कैसे अपनी क्रिएटिविटी को इन्हांस करेंगे? क्योंकि क्योंकि ना मेरा, सी क्योंकि कैसा है कि बेसिकली बहुत सारे लोग होते हैं जो क्रिएटिव नहीं होते, उनमें से मैं भी एक हूँ। बिकॉज आई एम नॉट अ क्रिएटिव पर्सन, लाइक देर आर ऑलवेज पीपल, मतलब बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो बोलते हैं जस्ट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। मैं कभी आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि मैं उस बॉक्स को इनसाइड ही, उसी बॉक्स को और क्रिएटिव कैसे बनता हूँ, क्योंकि मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक बहुत कुछ एक्सप्लोर नहीं किया है। ऑब्वियसली बहुत एक्सप्लोर करना है मेरे को, तो मैं अभी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ बहुत सारी चीज़ें। तो आई जस्ट थिंक दैट कि नहीं, क्रिएटिव एक्सप्लोर से मतलब एक्सप्लोर करने से बढ़ती है। तो व्हाट्स योर व्यूज कि मतलब कैसे बढ़ती है क्रिएटिविटी, और कुछ है? लुक अगर हम छोटे एग्जाम्पल से बात करें तो जैसे कि ताजमहल में हमने देखा है, वहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल बना हुआ है ताजमहल। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग अगर तुम लोगों ने विजिट किया है, और वहाँ पे अगर हम उसकी कार्विंग्स देखें तो देयर इज फ्लावर्स, राइट?
तो हम सोचते हैं कि वाओ लाइक दिस इज सच दिस थिंग इज आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है, बट बेसिकली वो चीज भी किसी चीज से इंस्पायर हुई है, राइट? वो रियल फ्लावर्स से इंस्पायर हुई है, रियल पत्तों से, नेचर से इंस्पायर्ड है उसकी कार्विंग। हाँ तो यूजुअली जो क्रिएटिविटी होती है ना, वो बिल्कुल ओरिजिनल होनी जरूरी नहीं है कि तुम कुछ एकदम ही ऐसा बना दो जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता दुनिया में, और ऐसा चीज बन भी नहीं सकता। बेसिकली कोई ना कोई कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लेता है। हाँ So basically you have to have an input in your mind to have an output, ठीक है? अगर तुम्हें क्रिएटिव पर्सन बनना है, you have to see things, you have to observe things, अपनी आंखें खोल के देखो। मतलब अभी तक हमने ऐसा होता ना कि तुम एक ही जगह से जब तुम जाओगे ना आर्किटेक्चर में, तुम अपने घर के आसपास ही ऐसी बिल्डिंग देख लोगे जो तुमने आज तक नहीं देखी होगी। Literally, your observing power increases so much when you are an architecture student. Like you will only see the architecture around you when you will go out. So basically, explore करो और observing power बढ़ाओ, observe करो चीजों को, details को, and then only when you will have input in your mind, and then you will have output, and you will become a creative person in the long run. ऑब्वियसली मतलब एक आर्किटेक्चर में मैंने ऑब्जर्व किया कि भाई फर्स्ट पहले बिफोर मैं पहले से बताया कि जैसे मैं आर्किटेक्चर बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, बट तभी भी मैं ऐसे कोई पर्सपेक्टिव नहीं था बिल्डिंग्स को देखने का। बट जब मैं आर्किटेक्चर में एंटर हुआ तो मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। लाइक मैं बिल्डिंग्स को देखने लगा, हाँ यहाँ पे बैलेंस नहीं है, ये बिल्डिंग बैलेंस नहीं है, इस बिल्डिंग में ये गलत है, ये बिल्डिंग रिदमिक फॉलो कर रही है, या फिर मतलब ये पार्ट रिदमिक फॉलो कर रही है, क्या है। लाइक हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। और कहीं ना कहीं अगर से हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं तो हमारी क्रिएटिविटी भी वैसे वैसे इनहेंस होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। तो इसी के जैसे मतलब आर्किटेक्चर में एक्सप्लोर करना क्यों ज़रूरी है? इज इट नेसेसरी टू एक्सप्लोर इन आर्किटेक्चर? Of course, it's so necessary to have exposure in architecture. Like you can't sit at your home and expect कि तुम बहुत ही अच्छी चीजें डिजाइन कर लोगे, क्योंकि बिकॉज अगर तुम्हें पता ही नहीं होगा ना कि अभी हमारी कैसी इंडिया में कैसी डिजाइनिंग चल रही है अच्छी अच्छी टाइप की, तो बेसिकली हो सकता है कि एक्सपोजर मिल जाए, क्योंकि अभी तो पूरा थैंक गॉड कि अभी पूरा ऑनलाइन में इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं। बट तुम अगर ऑनलाइन एक बिल्डिंग देख लेना, ठीक है, या तुमने कभी कोई बिल्डिंग ऑनलाइन देखी होगी, तो क्या तुमने वो सारी चीजें देख ली जब तुम उस बिल्डिंग को विजिट करोगे? नो, राइट? व्हेन यू विल विजिट द बिल्डिंग यू विल सी 100 एक्स्ट्रा थिंग्स। ऑनलाइन में भी देखोगे, बट जब विजिट करोगे ना तो और चीजें देखोगे, और वो फील भी तुम कर पाओगे कि आर्किटेक्ट ने एक्चुअली में क्या फीलिंग दिया है अपने यूजर्स को। तो दिस इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज व्हाई यू शुड हैव एक्सपोजर एंड यू शुड विजिट द बिल्डिंग्स व्हिच आर लाइक न्यूली कंस्ट्रक्टेड, एंड अभी के जमाने में जो बिल्डिंग्स बन रही हैं। ऑब्वियसली और कहीं ना कहीं लाइक बहुत सारी चीज़ होती है जो आपको आर्किटेक्चर में प्रैक्टिकली सीखनी पड़ेगी। लाइक कॉलेज में ऐसा होता है कि आपको हर चीज़ प्रैक्टिकल नहीं सिखाई जाएगी, आपको साइट विजिट नहीं होगी, आपको इंटर्नशिप में जब आप जाओगे तभी साइट विजिट होगी। बट उसके पहले आपको खुद साइट विजिट करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर से। अगर से आप ये चालू करते हो तो कहीं ना कहीं ये आपके एक्सपीरियंस को, आपके देखने के नज़रियों को, और मतलब आपकी सोचने की बोल सकते हैं आपकी थिंकिंग को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेगा, बढ़ाएगा, और आपको बहुत अच्छा एक क्वालिटी आर्किटेक्ट बनाएगा फ्यूचर में। तो मेरे ये तो अभी साइड में रखते हैं, अब बात आती है कॉलेज में। लाइक जैसे आप फर्स्ट ईयर में आते हैं तो आपको सबसे बड़ा डाउट क्या होता है, लाइक कि भाई नासा करे या ना करे। अब नासा क्या होता है? नासा ना एक मतलब कॉम्पिटिशन। कौन है? पागल है क्या? यार छोटा वायरस तुम्हारा घर को कट कर दिया इस पार्ट को। हाँ 2 मिनट। तो इसमें नासा वाला टॉपिक है, ठीक है। सो इसको रखते हैं साइड में, और हम लोग बात करेंगे लाइक कॉलेज के बारे में। लाइक जो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं आर्किटेक्चर में आके, क्योंकि ये चीज़ें उनको बहुत परेशान करती है, वो है नासा। बच्चों को समझ में बच्चों को समझ में नहीं आता कि नासा ले या ना ले, क्योंकि नासा अगर आपको नहीं पता है तो नासा एक ट्रॉफी है, नहीं सॉरी मतलब नासा एक कंपटीशन है जहाँ पे बहुत सारी ट्रॉफीज होती है, तो उसमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो क्या होता है कि आपको अपने कॉलेज के बाद रुकना पड़ता है, फिर कहीं सीनियर के घर पे जाना पड़ता है, आपको अपना टाइम वहाँ पर देना पड़ता है। तो क्या नासा से ही आप, क्योंकि बोलते हैं कि नासा से बहुत कुछ सीखने मिलता है, तो अगर सो बच्चा नासा नहीं करता है तो बच्चा और क्या कर सकता है?
सीखने के लिए? कॉलेज से काम कर सकता है और क्या करेगा। बेसिकली लुक, मैंने भी मतलब फर्स्ट ईयर में नासा करवाया था और इस सेमेस्टर में भी करवाया है। बट अगर नहीं भी करवाया है ना, तो इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें कुछ बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। लाइक डेफिनेटली अगर तुम नाच में पार्टिसिपेट करते हो, यू विल गेन एंड यू विल लर्न फ्रॉम द सीनियर्स। बट इवन इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट ड्यू टू एनी रीजन, और या तुम्हें मन नहीं है करने का, तो यार खुद ही अपने पढ़ाई पे फोकस करो बेसिकली। एंड यार मेहनत हर चीज में है। यू कांट एक्सपेक्ट कि तुम कॉलेज में चले जाओगे एंड देन टीचर्स विल फीड यू एंड तुम उसको खा लोगे और यू विल जस्ट लर्न एवरीथिंग। ऐसा नहीं होता है। यू विल हैव टू make your own efforts to learn things. Either it can be from NASA, or it can be from visiting sites, or it can be from anything. तुम्हें ही वो रास्ता सोचना है कि तुम कैसे ज्यादा सीख जाओगे। और जितना सीख जाओगे ना 5 साल में, उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बिकॉज 5 साल के बाद तो तुम ये नहीं सोचोगे ना कि हाँ चलो 5 साल हो गए अब सीखता हूँ मैं बैठ के। नहीं यार, 5 साल ही है, सीख लो। यही चीज़, यही ना सेम चीज़ सॉफ्टवेयर्स में होती है। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे आज भी कॉलेज में ऐसा होता है कि भाई सॉफ्टवेयर से बहुत लेट काम कराया जाता है। लाइक बच्चों को उतना सॉफ्टवेयर पे फोकस ही नहीं किया जाता। अब ये ऑनलाइन पे आ गया है तो अब उन लोग सॉफ्टवेयर पे ध्यान दे रहे हैं। बट इसके पहले जब हम लोग का रियल में कॉलेज चल रहा था, जब हम लोग फिजिकली कॉलेज में थे, तो हम लोग उतना सॉफ्टवेयर पे ध्यान नहीं देते थे। लाइक ऑटोकैड होता है, फोटोशॉप होता है, और स्केचअप होता है। तो लाइक ये जैसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये सॉफ्टवेयर्स लोग बहुत कम ही मतलब टाइम के बाद, जैसे मेरे कॉलेज में तो बच्चे लेट ही यूज़ करते हैं और आज भी बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है ये सॉफ्टवेयर। तो व्हाट्स योर व्यूज़ कि सॉफ्टवेयर आना फर्स्ट ईयर से ज़रूरी क्यों है? लाइक मैं तुमको बताता हूँ कि भाई क्यों ज़रूरी है। और जो बच्चे हैं यार देखो, उनको मतलब ये जो पूरी सॉफ्ट दुनिया है ना, पूरी दुनिया लिटरली अभी रोज लर्निंग का कॉन्सेप्ट छोड़ चुकी है। और पूरी की पूरी दुनिया अभी दूसरे टाइप ऑफ लर्निंग एजुकेशन सिस्टम में जा चुकी है। बट इंडिया में पता नहीं क्या दिक्कत है कि अभी भी वो उसी चीज पे स्टिक होके बैठे हैं जो कि चलता आ रहा है। यार दूर अभी टाइम चेंज हो गया है एंड नाउ इज द टाइम कि हर चीज सॉफ्टवेयर पे हो गई है। तो व्हाई आई डोंट अंडरस्टैंड। सॉफ्टवेयर पे वो सब चीजें सिखाई जा सकती है जो कि तुम शीट्स पे बना बना के सिखवाते हो। वो सब चीजें बच्चे सॉफ्टवेयर पे भी बना सकते हैं और सीख सकते हैं, और साथ में सॉफ्टवेयर भी सीख ही रहे हैं इसके साथ साथ। हाँ सो व्हाई द हेल like do you want them to do manual work for like 3 years? Because when they will like जब 3 years हो जाएगा और सिर्फ 2 ही साल बचा होगा, तो क्या तब वो लोग बैठ के सॉफ्टवेयर सीखेंगे जब उनकी इंटर्नशिप चल रही होगी? यार वो लोग यही चाहते होंगे ना कि 5 साल में हम सीख चुके हैं, सब हाँ कुछ सीख चुके हैं जितना सीखना था। अब हम लोग एक्सपीरियंस गेन करेंगे। नाउ इट्स द टाइम दैट दे हैव टू डू देयर ओन वर्क। तो नाउ अब उनके पास इतना टाइम तो है नहीं कि वो सॉफ्टवेयर सीखें। So I don't understand that why the hell the colleges don't like teach software from the very first year, जबकि हमारे कॉलेज तो सिखाते हैं, थैंक गॉड। और इसलिए मैंने ये कॉलेज चूज भी किया क्योंकि हमारे कॉलेज में सिखाते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर। एंड और भी बहुत सारे अदर रीजंस थे। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आप लोग अगर से अभी आपने एग्ज़ाम दे दिए, अगर से आप अभी खाली हो, ऑब्वियसली आप खाली हो अभी, तो आप लोग को अभी से ही मतलब ऑटोगेट, स्केचअप, ये सब इजी सॉफ्टवेयर है। ऑटोगेट ठीक है थोड़ा सा है मतलब लेवल का, बट एक बार आदत हो जाती है तो आ जाता है। और कहीं ना कहीं आपको इसी में ज़िंदगी बितानी है आपकी। अगर से इफ़ यू वांट टू बी एन आर्किटेक्ट, इफ़ यू वांट टू बी एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट, देन आपको ऑटोगेट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑटोगेट, स्केचअप ये ना अभी से ही इंस्टॉल कर लो लैपी में, और भाई चालू कर दो सीखना। ये लैपी कौन सा, मतलब मैं तो यही कुछ, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आएंगे ये वीडियो देखने के बाद कि भाई ठीक है हम लोग ने तो ये सब कुछ कर लेंगे, तो बेस्ट लैपी कौन सा होना चाहिए? लाइक कौन सा लैपटॉप अच्छा होगा आर्किटेक्चर के लिए, जहाँ पे सॉफ्टवेयर पूरे आ जाएंगे, एंड व्हाट द काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर वी आर गोइंग टू इंस्टॉल इन दैट लैपी? सिर्फ द सॉफ्टवेयर, जो लैपटॉप आपको चाहिए वो मैक नहीं लेना, विंडोज ही लेना। बिकॉज इंडिया में अभी हम लोग सारे लोग ना बचपन से मैक नहीं यूज करते हैं, तो एक डिफरेंट, तुम लोग iOS सीखने जाओगे ना, तो उसमें तुम लोग पहले तो उसको सीखोगे तो उसमें तुम्हारा अपना टाइम जाएगा। तो इसलिए विंडोज अभी हम लोग बचपन से यूज करते हैं, और हर जगह जो टीचर्स भी, जो सिखाने वाले भी है ना, वो विंडोज पे सिखाते हैं। सो हाँ आई वुड प्रेफर, लाइक आई वुड नॉट प्रेफर, तुम्हें अगर तुम वही ले लो, विंडोज वाला ही लेना अभी, ठीक है। सो जस्ट बाय द विंडोज नॉर्मल लैपटॉप। और लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन जो होनी चाहिए, वो रैम जो है ना, वो या तो 8 GB का लेना या 16 GB का लेना, जिसमें मतलब आ जाए सॉफ्टवेयर, क्योंकि बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर होती हैं। और
बेसिकली यार मैंने वीडियो बनाई है सॉफ्टवेयर लैपटॉप और क्या कॉन्फ़िगरेशन है तो वो देख लेना, मैं दोबारा नहीं बता रही। ऑब्वियसली मैं और जो मतलब आई बेसिकली बटन और क्या लिस्ट पूछा था तुमने एक और क्वेश्चन, लैपटॉप एंड के अबाउट साथ सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर, हाँ सॉफ्टवेयर कौन से नहीं चाहिए, तो सॉफ्टवेयर यही ऑटोकैड, स्केचअप, लूमियन और फोटोशॉप, ये 4 सॉफ्टवेयर होते हैं। ओके, और जो बात रही लैपटॉप की तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड आई बटन पे भी वो आ जाएगा, तो भाई आप लोग देख लेना वो वीडियो। श्रुति ने बनाया बहुत अच्छा वीडियो, उसमें सब कुछ बताया क्या है और क्या नहीं। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो लाइक अबाउट स्टेशनरी। अब बात होगी स्टेशनरी पे। स्टेशनरी लाइक आप लोग सुनते हो कि अपने सीनियर से, या फिर आप लोग अपने सीनियर से बात करते हो, या फिर अपने बड़े से लोग जो अभी आर्किटेक्चर कर रहे हैं, तो उन लोग बताते हो कि भाई स्टेशनरी में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तो हम लोग कैसे उसकी कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं और कैसे मतलब हम लोग कम पैसा खर्च कर सकते हैं स्टेशनरी में, व्हाट वी कैन डू। लोग स्टेशनरी में पैसा लगता है और ये सच है कि स्टेशनरी में बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है। इट इज बिकॉज यार आर्किटेक्चर ना कोर्स ही कुछ ऐसा है कि तुम लोगों को प्रिंट्स निकालने पड़ेंगे, तुम्हें उसमें कलरिंग रेंडरिंग करनी पड़ेगी, तुम्हें महंगे स्टेशनरी यूज करने ही पड़ेंगे, वरना तुम सीख ही नहीं पाओगे। पता है, अगर तुम एकदम ही बेकार बेकार से प्रिंट्स निकाल दोगे ना, तो तुम्हें लाइन वेट्स का पता नहीं चलेगा, तुम्हें समझ नहीं आएगा कि अच्छे से हम कैसे प्रिंट निकालें और क्या अपने सॉफ्टवेयर पे क्या और इम्प्रूव करें कि प्रिंट हाँ हमारा अच्छा है। तो अगर मैं बस ये टिप देना चाहूंगी कि प्रिंट निकालने से पहले एक फोर शीट पे निकाल के देख लिया करो, एंड देन व्हेन यू थिंक कि हाँ अभी सही आ रहा है, देन ओनली यू फाइनलाइज योर लाइक प्रिंट्स। एंड क्योंकि A1 शीट पे निकलती है ना प्रिंट बड़ी बड़ी शीट में, तो पहले A4 पे निकाल के देख लो। एंड बेसिकली टेक केयर ऑफ योर जो भी सामान है, क्योंकि एक बार खरीदना है, तुम्हें बार बार नहीं खरीदना, तो अपने ऑब्वियसली। सामान का ध्यान रखो वरना वो चोरी हो जाते हैं। तो बेसिकली ये दो चीजें, A4 शीट से निकाल के देखना और अपने सामान का ध्यान रखना, हाँ तुम्हारा चलेगा ज्यादा, क्योंकि ना बार बार सामान चोरी हो जाता है हर महीने, हाँ, तो उसमें भी बहुत ज्यादा पैसे। आर्किटेक्चर में बच्चे होते हैं चोर सामान चोरी हो जाता है। आपको मिलेगी, आपके पास टी इसमें स्केल चोर होते रहेगी, हैं आपके पास सेट स्क्वायर रहेंगे, आपके पास ट्रायंगुलर स्केल रहेगी, सबसे ज़्यादा आपके पास वो टेप जो रहती है हम लोग जो यूज़ करते हैं, वो इरेजर वो पेंसिल, आपकी पैनल बार पेंसिल, आपकी पेंसिल रोड हर रिंग्स, क्लास में गायब। आपकी रोड रिंग्स, नहीं आपकी पेंसिल एच सही बी तो अगली पेंसिल। क्लास में गायब। हाँ वो सब एकदम ऐसे चुटकी हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, आपको दिखेगा भी नहीं, और कहाँ जाएगी क्या जाएगी कुछ नहीं पता। तो अपने सामान का ख्याल रखो। अब ये थोड़ा फनी मोमेंट हो गया था, बट सीरियसली गाइस आपको आर्किटेक्चर में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें करेक्टली सीखनी पड़ेगी, अपने लाइफ में वैल्यू एड्स करनी पड़ेगी, आपको डिसिप्लिन इंसान बनना पड़ेगा, और सबसे पहली बात आपको सीरियस बनना पड़ेगा चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए, तभी जाके आप कहीं ना कहीं अच्छा करोगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आर्किटेक्चर में होती है टाइम मैनेजमेंट। सो हाउ टू मैनेज टाइम, हाउ टू डू टाइम मैनेजमेंट इन आर्किटेक्चर, एंड व्हाई इज इट essential? Look, time management I think is the most important thing in architecture, because इतनी सारी चीजें होती हैं जिन्हें, इतना सारा सब्जेक्ट होता है, इतना वर्क प्रेशर होता है। एंड बेसिकली मैं जैसे अपना एग्जांपल बताती हूँ जल्दी से, कि जब मैं कॉलेज में थी, आई लाइक ऑलवेज यूज टू डू वर्क, लाइक आई वेंट मैड फॉर आर्किटेक्चर। तो उसमें मैंने खाना खाना एकदम ही बंद कर दिया था मेस से, और मैं कभी भी कुछ भी खा लेती थी बाहर से मंगवा के या फिर कैंटीन से, रात को भूख लगी तो। एंड आई बिकेम सो इल इन लॉकडाउन, जब मैं घर आई एंड आई वाज लाइक कि यार मैंने क्या कर दिया। अब मैं ना लॉकडाउन में काम कर पा रही थी ना मैं कुछ कर पा रही थी, एंड आई बिकेम सो इल, इट वाज बिकॉज लाइक ऑफ अ लिटिल बिट पुअर टाइम मैनेजमेंट। तो इसीलिए गाइस एटलीस्ट लाइक फोकस ऑन योर हेल्थ व्हेन यू आर इन आर्किटेक्चर, बिकॉज वर्क ऑब्वियसली। प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए लोग अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, ठीक से सोते नहीं है, या फिर इनको इतना तो होता है तो वो पूरी पूरी रात काम करते हैं। हाँ काम करना होता है, बट तुम्हें अपने टाइम को इस तरह से मैनेज करना है कि तुम एटलीस्ट अगर हफ्ते में एक रात जग रहे हो या 2 रात जग रहे हो मैक्सिमम, उससे ज्यादा ना हो। ऐसा नहीं कि तुम पूरे हफ्ते ही जग रहे हो। तो यू नो मैनेज योर टाइम, बेसिकली फिनिश योर वर्क ऑन टाइम। ऐसा नहीं है कि आप एंड मोमेंट पे सबमिशन कर रहे हो, कुछ लोग की आदत होती है कि एंड पे टाइम आया तो एंड में करेंगे, बिल्कुल तो ऐसा मत करो, आपके पास वर्क पाइल अप हो जाएगा। तो फिनिश करते जाओ वर्क धीरे धीरे, इतना भी काम नहीं देते कि तुम कभी नहीं सो पाओगे। हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट तुम्हें आनी पड़ेगी और करनी पड़ेगी। अपना वो विजन बोर्ड बना लो कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, या फिर अपना एक बेसिकली टाइम टेबल बना लो। ऑब्वियसली। तो या आई थिंक दैट्स। और व्हाट डू यू गिव, लाइक मैं बोलूँगा कि तुम अभी क्या एडवाइस देना चाहोगे अपने जूनियर्स को जो आने वाले हो, एक क्या एडवाइस होगी, क्या देना चाहोगे एडवाइस?
आने वाले हैं, मैं उनको यही एडवाइस देना चाहूंगी कि तुम लोग बिल्कुल रिलैक्स रहो, तुम लोग बिल्कुल चिल रहो, ज्यादा सोचो मत कि यार ये मैंने ले लिया या फिर ये क्या हो गया। इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा। इतने लोग कर रहे हैं, मतलब मैंने इतने लोगों को देखा है कि जॉब मिलेगी, ये होगा आर्किटेक्चर में, जॉब मिल पाएगी, पैसे हैं, क्या होगा, कौन सा फील्ड में हाँ जाऊं। अरे रुक जाओ भाई, जॉब वॉब का देख लेना, पहले सीख तो लो। पैसे कमाना नहीं होता सब कुछ जिंदगी में। कभी ऑब्वियसली। कभी योर सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यस अगर तुम अच्छे आर्किटेक्ट बन जाओगे, तो मैं ऐसा लगता है कि मुझ में इतनी स्किल है, तो तुम्हें क्यों नहीं मिलेगी जॉब, मतलब क्यों? ऑब्वियसली। कोई कोई रीजन ही नहीं है जॉब ना मिलने का, राइट? तो डोंट स्ट्रेस टू मच, और हर चीज अच्छे से सीखो। प्लीज डोंट थिंक कि मैं कॉलेज में जा रहा हूँ तो मैं मस्ती करूंगा कॉलेज में जाके। राइट, दिस इज सच अ बिग मिथ। अगर तुमने मस्ती कर ली ना 5 साल, आई एम टेलिंग यू, यू विल लर्न नथिंग, एंड देन यू विल फेस प्रॉब्लम्स इन आर्किटेक्चर, और फिर तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी, फिर तुम रोगे। Guys, be serious. I think not only for architecture but also for every field out there. If you are not focused and if you are not doing hard work, you are not gonna be successful like soon. बाद में मैं तो बाद में होगा ना फिर सक्सेस। ऑब्वियस। So that's what I think. Work hard, okay? देयर Be इज diligent, work hard, everything will be fine. देयर इज वन एडवाइस फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। लाइक मैं जानता हूँ कि भाई ये सच है कि बहुत ज़्यादा काम होता है, आई नो दैट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, बट प्लीज़ डोंट गो फॉर अल्कोहलिज्म, लाइक डोंट गो फॉर सिगरेट स्मोकिंग, डोंट गो फॉर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हैबिट आपको बिगाड़ेगी। लाइक हाँ मेरे को ना मतलब सुट्टा मारने से, लाइक सिगरेट पीने से मेरा काम होगा, मैं रात भर जग पाऊंगा। लाइक जस्ट गो फॉर कॉफ़ी, जस्ट गो फॉर टी, बट डोंट गो फॉर अल्कोहलिज्म। लाइक मैं बहुत दिल से कह रहा हूँ भाई, जो भी सुन रहा है इस वीडियो को, लड़की हो लड़का हो कोई भी हो, क्योंकि आर्किटेक्चर में ये बहुत ज़्यादा होता है। हाँ ये एक ऐसी फील्ड है जो कि बहुत ज़्यादा होता है, बट प्लीज़ डोंट गो फॉर इट। कहीं ना कहीं ये आपके हेल्थ को भी ख़राब करेगा, आपकी सोचने की क्षमता को और कम करेगा। सो प्लीज़ डोंट गो फॉर अल्कोहलिज्म, स्टार्ट अ मेडिटेशन, गो एक्सप्लोर द नेचर, एक्सप्लोर द थिंग्स, एक्सप्लोर द बिल्डिंग्स। तो कहीं ना कहीं आपको क्रिएटिविटी पढ़ाएगा, बस यही है। और लास्ट, this is Veer Kosre and Shruti signing off. signing off.